Namaskar, very good morning. Today my lectures International Organization, the title Weaknesses of the League of Nations. Weaknesses of League of Nations. Weaknesses of League of Nations को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, weaknesses of League of Nations and conclusion. This topic is a very important purpose of the examination. राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं, ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम पिछले क्वेश्चन का रीड करें तो ये कई बार शॉर्ट में या लॉन्ग में भी पूछा जाता है. ज़्यादातर ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इसको ऐड कर दिया जाता है. तो आइए आज इसी पर हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वीकनेसेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन. द मेन ऑब्जेक्ट एंड वीकनेसेस ऑफ द लीग वेयर एज फॉलो. यानी लीग ऑफ नेशन की जो दुर्बलताएं हैं वो निम्नलिखित हैं. नंबर 1, one of the main defects of the covenant of the league was that all decisions of the council were to be taken with unanimity. As the states were divided among groups, it was not possible to decide matters unanimously. The unanimity principles incorporated with the covenant proved to be detrimental to the working of the League of Nations. Second defect, yet another important defect of the League of Nations was that it could not completely prohibit war. The Covenant of the League of Nations permitted member states to resort to war under certain situations. The Covenant provided that the member states were firstly under the obligation to settle their dispute through arbitrations, judicial settlement or inquiry by the council. But if the problem was not solved through these methods, they could resort to war after the lapse of 3 months. It means war was not completely prohibited under the Covenant of the League of Nations. Non-participation, third weaknesses, non-participation of United States of America to the League of Nations was at another important weaknesses with this organization. The Covenant of the League of Nations was a multilateral international treaty and America could not become a member unless this treaty was ratified by the American Senate. As the American Senate did not ratify it, America could never become its member. Hence, League of Nations remained an organization limited to European countries only. For weakness, another defect of the League of Nations was with regard to the provision of constitutional amendment of the Covenant. It provided that if any amendment
of the covenant was not acceptable to a member state, it would cease to be its member. This provision provided to this organization as many member states ceased to be the member of League of Nations. फिफ्थ वीकनेस यानी पांचवा जो दुर्बलताएं थी. फिफ्थ वीकनेस, देयर वाज प्रोविजन अंडर द कॉन्वेंट फॉर द विड्रॉवल ऑफ मेंबरशिप. द मेंबर कुड विड्रॉ फ्रॉम द लीग आफ्टर गिविंग 2 year notice. The provision proved detrimental to the interest of the League of Nations. In the beginning there were 62 members in the league, but in due course of time it was reduced to 32 only. Under the UN Charter, this provision was internationally ignored. This is, however, no such provision under the UN Charter, so the United Nations is moving smoothly. Sixth weakness, the Council of League of Nations was not so competent as to settle amicably the dispute among the members. Seventh weakness, the League of Nations could not check the big power from attacking and exploiting small states. Eighth weakness, the league failed miserable and could not perform its primary function of maintaining international peace and security, which was one of the foremost purpose of the league. Ninth weakness, big powers were selfish. And they always considered their selfish interests over and above all things. 10 weakness, the league were based on the policy of discrimination between great power and small state. The league was based on the policy of discrimination between great powers and small states. Equality of status of member states was absent under the covenant of the league. 11 weakness, the last important defect of the league was that it failed miserably to perform its primary duty of maintaining international peace and security, was combined functions of the Council and Assembly. Due to lack of unanimity among these two organs, this main purpose of the covenant could not be achieved. तो ये रहा आपका डिस्क्राइब द वीकनेसेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन. ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए ये लीग ऑफ नेशन के मेन वीकनेसेस थे, मेन कमियां थी, मुख्य कमियां थी. देखिए ओवरऑल लीग ऑफ नेशन के जो वीकनेसेस थे यानी राष्ट्र संघ की जो कमजोरियां थी, जो दुर्बलताएं थी, वो लीग ऑफ नेशन के प्रोविज़न में ही था. जैसे सबसे बड़ा वीकनेसेस तो ये था कि लीग ऑफ नेशन के जो ऑर्गन थे यानी असेंबली और काउंसिल, इनके बीच जुरिडिक्शन का कोई बंटवारा नहीं था. तो इसका डिफेक्ट क्या हुआ कि असेंबली के जुरिडिक्शन में काउंसिल इंटरफेयर करती थी और काउंसिल के जुरिडिक्शन में असेंबली जो है इंटरफेयर करती थी. दूसरा जो वीकनेस था प्रोविज़न में वो ये था कि
इसमें वॉर को पूरी तरह से प्रोहिबिट नहीं किया गया था, यानी युद्ध पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई गई थी। कुछ सिचुएशन में मेंबर वॉर कर सकते थे। वो सिचुएशन ये था कि अगर कोई डिस्प्यूटेड मेंबर अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट अगर काउंसिल या असेंबली या इंक्वायरी के थ्रू कर रहा है तो उसको 3 महीना वेट करना पड़ता था। इस 3 महीने के पीरियड को कूलिंग पीरियड कहा जाता था, यानी 3 महीने तक वो युद्ध नहीं कर सकता था, वॉर नहीं कर सकता था। अगर 3 महीने के अंदर या 3 महीने तक अगर उसके डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं हो पाता था तो उसको ये राइट था कि ये वॉर के थ्रू जो है अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर दे। ये सबसे बड़ा वीकनेस लगता है जिसमें वॉर को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं किया गया था। इसके अलावा जो मेन वीकनेस है वो ये है कि कोई भी मेंबर जो है अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता था, यानी कोई भी सदस्य लीग ऑफ नेशन की सदस्यता का प्रत्याहरण या विड्रॉ या वापस ले सकता था। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन में टोटल 62 मेंबर्स का ग्रुप था, यानी लीग ऑफ नेशन में टोटल 62 राज्यों का जो है इसमें सदस्यता थी और 30 राज्यों ने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करना शुरू किया। तो टोटल जो है ये इंक्रीज होने के बजाय ये लेस होता गया और 32 पर आकर रुक गया। इसके अलावा जो वीकनेस हमें लगता है जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन का डिसोल्यूशन हुआ वो ये था कि यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की ही सहायता से लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, उन्हीं के अथक प्रयास से इसको बनाया गया था। लेकिन विडंबना ये रही या लीग ऑफ नेशन का दुर्भाग्य रहा कि यूएसए कभी भी लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। कारण ये था कि अमेरिकी संविधान में यह प्रोविज़न है, यह प्रावधान है कि अमेरिका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य तब तक नहीं बन सकता, मेंबर तब तक नहीं बन सकता जब तक जो है अमेरिकी सीनेट इसके लिए अनुमति प्रदान न करे। और लीग ऑफ नेशन के मेंबरशिप के लिए अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका को परमिशन यानी कि अनुमति प्रदान नहीं की। इसी कारण से जो है अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। इसके अलावा जो अगला जो सबसे मेन वीकनेस हमें लगता है वो ये है कि जो लार्जेस्ट स्टेट थे यानी जो बड़े राष्ट्र थे वो छोटे राष्ट्रों के साथ भेदभाव करते थे, यानी लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था, पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित था। और बड़े राज्य यानी लार्जेस्ट स्टेट जो है वो स्मॉल स्टेट को ज़रा सा भी प्रिविलेज, ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वो छोटे छोटे स्टेट जो थे उन्होंने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करना यानी अपनी सदस्यता का प्रत्याहरण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन में यह प्रोविज़न था कि लीग ऑफ नेशन में कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वो सभी ऑल मेंबर्स के म्यूचुअल कॉन्सेंट से लिया जाएगा। ऐसा प्रोविज़न में लीग ऑफ नेशन के कॉन्वेंट में ऐसा प्रावधान था। लेकिन विडंबना ये रही कि लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स के बीच कभी भी म्यूचुअल कॉन्सेंट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट स्टेट स्मॉल स्टेट के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे और उनके किसी भी प्रपोजल को, किसी भी सजेशन को लार्जेस्ट स्टेट जो है वो प्राइमेसी या इम्पोर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते थे। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन को जिन जिन राष्ट्रों ने बनाया उन्हीं ने इसका भरपूर जो है वायलेट किया, भरपूर इसका दोहन किया। तो ये है लीग ऑफ नेशन के वीकनेसेस, जो कि ज़्यादातर ये लॉन्ग शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये लॉन्ग के साथ भी इसको अटैच करके इसको जोड़ करके पूछा जाता है। जैसे कभी कभी ये पूछता है कि लीग ऑफ नेशन मेन प्रिंसिपल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड डिस्कस द वीकनेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशन, या ओनली शॉर्ट नोट पूछ देता है कि वीकनेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो ये टॉपिक जो है आप लोग इसको तैयार करिएगा। थैंक यू।